Hello dear, how are you all? In my previous video, as you know that we are doing the chapter, the unit you can say, money and banking. In this, we have already discussed central bank meaning and functions in my previous video. And today we will be continuing with the function of commercial bank. Function of commercial bank, the credit creation function. That means how does the commercial bank creates credit in the economy? ठीक है. Now I will be continuing with the commercial bank. So dear ones, this is commercial bank. Commercial bank होता क्या है? वो इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल इन द सेंस जनरल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, in which we keeps our reserves and we take the loans from it. That means commercial bank advances loans to the general public and saves their deposits, keeps their deposit, accept their deposits. There means we are talking about the general public. General public cannot open their account in RBI directly. So commercial banks are there to help general public. So commercial bank is the institution which receives funds from the public. It accepts the funds and give loans and advances to those who need them. Lending. उनको देता है जिनको जरूरत हो, जिनके पास स्पेयर है उनसे लेता है और जिनको चाहिए उनको देता है. सो दिस इज कमर्शियल बैंक. ये इसका मेन फंक्शन है. वैसे तो और भी कमर्शियल बैंक हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है. तो कमर्शियल बैंक पब्लिक बैंक्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पीएनबी, एसबीआई. प्राइवेट बैंक भी होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और फॉरेन बैंक भी होते हैं, ट्रस्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. तो तीन तरह के हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक. सो नाउ हियर वी विल स्टडी द डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. Central bank is an apex institution. Apex means the main institution, chief institution, head institution of the country. And commercial bank deals in money and credit creation, especially with the general public. Management of the central bank is generally owned by the government, and of the commercial bank is owned by the private as well as government. That means we have studied about the public and the private banks. Currency issue. Central bank have the monopoly right to issue currency notes. Only central bank is having the sole authority to issue the new currency, right? New notes. And commercial bank does not have such right. That means commercial bank cannot issue new currency, right? So public dealing, central bank does not do the public dealing. Central bank general public के साथ deal नहीं करता, but general public के साथ कौन deal करता है? Commercial bank. Now foreign exchange. Central bank acts as the custodian of foreign exchange. Foreign exchange को custody में कौन रखता है? Central bank. Custody में central bank होता है. Now exchange जो जनरल पब्लिक एक्सचेंज करती है वो कौन कराता है? कमर्शियल बैंक. फ्रॉम वेयर द कमर्शियल बैंक गेट्स, वो उसकी कस्टडी से रहता है सेंट्रल बैंक की. ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक का? सोशल वेलफेयर. और कमर्शियल बैंक का अर्निंग प्रॉफिट. सो हियर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द बैंक, वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल बैंक, राइट? ध्यान में रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल बैंक. क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, but credit is controlled by central bank. ध्यान रखना, क्रेडिट कंट्रोलर कौन होता है? सेंट्रल बैंक. क्रेडिट क्रिएट कौन करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? कमर्शियल बैंक. सो यू हैव टू कीप इन माइंड, क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक. नाउ हाउ डज क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द बैंक? होता क्या है? क्रेडिट को क्रिएट करना, क्रेडिट को बाहर बेचना, लोगों को पैसा देना. सो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक इनटू ह्यूज अमाउंट. बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन्स टुवर्ड्स कस्टमर्स आउट. ठीक है. मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? बैंक है, अकाउंट खुला, अकाउंट के अंदर पैसे आए, डिपॉजिट्स. उस डिपॉजिट्स को आगे लोन के फॉर्म में देना. बैंक कभी भी अपने पास पैसे को नहीं रख लेता. आपने पैसे दिए, ये नहीं है कि आपका एक लॉकर बना हुआ उसमें आपके पैसे चले जाएंगे, नहीं. ये सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड वर्क हो जाएगा, आपके नाम पे पैसे चढ़ जाएंगे, पेपर वर्क हो जाएगा. वो पैसे, आपका ही नोट आपको नहीं मिलेगा, आपके पैसे आगे चले जाएंगे कहीं. जब आपको कुछ जरूरत होगी तो आपको कहीं से पैसे मिल जाएंगे. तो कुछ अमाउंट जो है बैंक अपने पास रखता है, बाकी आगे एडवांस कर देता है. तो ऐसे ही बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे ही बैंक अपनी इनकम करते हैं. ठीक है.
तो कहाँ से, आउट ऑफ व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक ने अकाउंट खोला और पब्लिक को ही लोन दिया। तो सेंट्रल बैंक इस तरह से काम करते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, कितना पैसा उनके पास आएगा, कितना वो देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स, कितने पैसे आए हैं बैंक के पास, और प्लस LRR कितना है। LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। दिस इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज लिक्विड एसेट्स बाय द बैंक। लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपका चेक्स आ गए, ड्राफ्ट्स आ गए, और यू कैन से अब अलग से क्या आ जाएगा, कैश ऑल्सो बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, लीगल रिजर्व रेशियो पे। दिस LRR इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक रेशियो फिक्स कर देता है कि इतना % रेशियो आपको अपने पास रखना है और बाकी जो है आप आगे दे सकते हैं। सो इट अज्यूम दैट ऑल द मनी दैट गोज आउट ऑफ द बैंक इज रीडिपॉजिट इनटू द बैंक। एक हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि देखो जब भी कोई भी पर्सन लोन लेता है ना, उसके हाथ में कैश नहीं दिया जाता, उसका अकाउंट खोला जाता है, उसके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं कि बैंक से हमने पैसा लिया, एक बैंक से पैसा लिया, जिसने लोन लिया उसने दूसरे बैंक के अंदर डाल दिया। तो अब क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कितना क्रेडिट क्रिएट होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर हमारा कितना है। अब ये मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मीन्स कितने टाइम्स हमारी मनी बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हमारे पास आता है तो कितने लाख रुपए का हम उससे लोन बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन मनी मल्टीप्लायर। द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज 1 upon LRR. Now say suppose LRR is fixed by the RBI, that is 10%. So money multiplier will be कितने टाइम्स मनी बढ़ जाएगी, 1 upon 10%. 10% means 10 upon 100. 100 ऊपर चला जाएगा, that means 10 टाइम्स, 10 गुना वो मनी बढ़ जाएगी। Now if I say suppose LRR is 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 1 upon 50 by 100, 100 upon 50, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी मनी मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मेन जो फॉर्मूला है हमारा क्रेडिट क्रिएशन का, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर के साथ ही आता है। मनी मल्टीप्लायर जितना है 2 टाइम्स और 10 टाइम्स इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट सपोज एक एग्जांपल ले लो, इनिशियल डिपॉजिट हमारी इकोनॉमी के अंदर है, हमारे बैंक के अंदर है 10,000 रुपए। एक अकाउंट खुला, उस अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, ये हमारे इनिशियल डिपॉजिट हो। अब बैंक क्या करेगा, 10,000 को रखेगा थोड़ी अपने पास, 10,000 को आगे कर देगा, और लेकिन कुछ तो उसे अपने पास रिजर्व में रखने पड़ेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बोला है। अब नाउ से सपोज LRR is 20%, दैट मीन्स 20% you have to keep as a reserve and rest 80% you can give forward as a loan. So now what is money multiplier, 1 upon LRR, that means 5. 5 means 1 upon 20%, 100 ऊपर चला गया, 20 नीचे रह गया, इट इज 5 टाइम्स। आप इस पैसे को 5 गुना बढ़ा सकते हो। सो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, और इसको इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 upon LRR. In some books you will find initial deposit into 1 upon CRR. So don't get confused. CRR is cash reserve ratio. LRR क्या होता है, LRR का पार्ट ही है CRR और SLR, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो कुछ बुक्स में सिर्फ CRR को लेकर चला है और कुछ में दोनों को साथ में लेकर चला, तो आप LRR इसको लिख सकते हो, तो हार्डली मैटर, इट इज करेक्ट। So now credit creation is equal to money multiplier we have calculated here is 5 into initial deposit is 10,000 we have taken here. So how much credit can be created in the economy, 50,000. That means वो 10,000 जो है 5 गुना बढ़ सकते हैं। यह है ना हमारा मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, तो 5 गुना जो पैसा है हमारा आगे बढ़ सकता है। अब बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है ये समझो। कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट हमें, देखो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो,
SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बात करते हैं सेंट्रल बैंक के पास हम कैश रिजर्व रख पाते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये जो है कैश के फॉर्म में होता है जो हमें RBI के पास रखवाना पड़ता है। ये जो है हमारी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में होता है, जो एसेट्स को हम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं, गोल्ड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये सब। ये बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, टोटल 100% डिपॉजिट्स। अज्यूम दैट लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR प्लस SLR, ये दोनों ही मिला के हमारा बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो अगर ये 20% है, दैट मीन्स 80% यू आर अलाउड टू गिव एज अ लोन, बट 20% यू हैव टू कीप एज अ रिजर्व। अब इसके अंदर भी कितना हमारा CRR है और कितना SLR है, इट डिपेंड्स। जितना CRR होगा उतना कैश की फॉर्म में हमें RBI के पास रखवाना पड़ेगा, और जो SLR होगा जितना परसेंट, उतना लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखना पड़ेगा। सो सपोज SBI रिसीव्स ₹10,000 as deposited by the primary deposits called primary deposit, कि भाई 10,000 रुपए आ गए अकाउंट के अंदर, तो SBI को 2,000 अपने पास एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा, और बाकी 8,000 जो है वो एज ए लोन आगे बिजनेसमैन को दे सकता है। अभी हमने एक बिजनेसमैन को दिया, अब उस बिजनेसमैन ने वो 8,000 रुपए अपने PNB अकाउंट में डलवा दिए। अब PNB के लिए तो इनिशियल डिपॉजिट हो गया, PNB के अकाउंट में पैसा आ गया, तो PNB भी आगे यही करेगा, 20% ही विल कीप एज अ रिजर्व, 1,600, और 6,400 वो Y को दे देगा एज अ लोन। अब Y क्या करेगा? Y ने तीसरे बैंक में डलवा दिया, सपोज Y ने जो HDFC में अपना अकाउंट खुलवा दिया, अब ये HDFC के लिए प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब वो क्या करेगा? इसका 20% एज अ रिजर्व रखेगा और 80% एज अ लोन आगे दे देगा। तो दैट मीन्स 6,400 का जो रिजर्व है 1,280 रख लेगा, बाकी 1,5,120 आगे लेंड कर देगा आगे। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। देखो, राउंड 1 में 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट था, 2,000 लीगल रिजर्व में रखा, 8,000 क्रेडिट किया। 8,000 दूसरे के लिए जो है प्राइमरी डिपॉजिट का काम करेगा, उसका 1,600 रिजर्व रखा, 6,400 क्रेडिट किया। ये 6,400 किसी और के लिए इसको राउंड 2 लिखो, राउंड 2, राउंड 3, ये 6,400 जो है। अब देखो, अगर इसको हम एक ही बैंक करके चले, बैंक सिंगल एक बैंक करके चले, तो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। लेकिन अगर हम बैंक अलग ले लें, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, तीसरे बैंक में ये इनिशियल डिपॉजिट है, ये इसका उतना रखेगा और बाकी आगे एज अ लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। तो टोटल कितना हमारा प्राइमरी डिपॉजिट हुआ? 50,000 के डिपॉजिट में 10,000 जो आप रिजर्व की तरह रखोगे और 40,000 जो आप क्रेडिट क्रिएशन के लिए दोगे। सो हायर द लीगल रिजर्व रेशियो, लोअर विल बी द साइज ऑफ क्रेडिट। जितना ज्यादा रिजर्व में रखोगे, रिजर्व का मतलब आप सेव कर रहे हो, उतना कम क्रेडिट बाहर जाएगा, और जितना कम रिजर्व में रखोगे उतना क्रेडिट बाहर जाएगा। आई होप क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज क्लियर टू यू। बेटा, जो भी प्रॉब्लम आपको होगी प्लीज डू आस्क। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमारा बैंकिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा इस यूनिट में सिर्फ मनी बचता है, जो अभी हम नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस यूनिट विल बी ओवर बाय द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, यू कैन प्लीज आस्क। और कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। कंप्लीट योर वर्क, डू योर वर्क, आस्क योर क्वेरीज, एंजॉय द वर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।